پھر ہمیں یورپین کنٹری سے بھی بالکل کنارہ کشی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ساری عیسائی ہے. اگر مذہبی اختلاف ہے, اگر جوش لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل ہماری زمین ہے, ان کی 5000 سال کی تاریخ ہے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, وہ سب اسرائیلی تھے, اسی زمین سے وہ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کر کی زمین. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیمپس ویوز. تو میں ہوں آپ کے ساتھ سید ذریعت عباس. تو آج کا دن یوم نکبہ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. یوم نکبہ کیا ہے؟ آج سے 75 سال پہلے اسرائیل جیسی صہیونی ریاست نے فلسطین کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان پہ ناجائز قبضہ کیا. یہی وہ دن تھا. اسی دن کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے اور اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حیدرآباد کیمپس ویو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم کچھ دوستوں سے پنجاب یونیورسٹی میں حاضر ہیں اور کچھ دوستوں سے یوم نکبہ کے عنوان سے بات کریں گے. اچھا، کوشچن یہ آپ سے کہ آج کا دن جو ہے عالمی سطح پر یوم نکبہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا اور ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا. اب یہ کہ بحیثیت پاکستانی ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسرائیل کو قطعاً جو ہے نا اس کو قبول نہیں کر سکتے، وہ ایک صہیونی ریاست ہے. تو ہمیں کیونکہ قائد اعظم ہمارے بابا قوم ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم اس کے اگینسٹ تو نہیں جائیں گے. تو جیسا انہوں نے کہا ہم ان کی حق نہیں کریں گے، اسے قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل بیسیکلی ہم دیکھیں کہ ہماری تاریخ دیکھی جائے تو اسرائیل نے ہمارے ساتھ بیک اینڈ پچھلے کچھ وقتوں میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہمارے مسلمان بھائی پر شدید ترین ظلم کیا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ان کو بے گھر کر کے اپنی حکومتوں پہ گاڑ دی گئی. اس کے بعد اسلام کے خلاف کافی پروپیگنڈے کیے گئے اور اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف ہمیں مکمل طور پہ مظاہرے کرنا چاہیے، ان کو کسی طرح تسلیم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، اسرائیل میرے خیال سے اسرائیل آج ہوتا ہی نہ اگر فلسطینی یہودیوں کو ادھر رہنے کی جگہ نہ دیتے. میرے نزدیک تو اسرائیل کے جو یہودی ہیں ان پہ فلسطین کا احسان ہے کہ انہوں نے انہیں ادھر رہنے کی جگہ دی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دی. اسرائیل نے یہی کام کیا کہ فلسطینیوں نے انہیں ادھر رہنے کی جگہ دی، ان کے ساتھ احسان کیا. جبکہ ہٹلر آپ جانتے ہوں گے وہ ہر جگہ دنیا بھر میں اس یہودیوں کو مار رہا تھا. فلسطینیوں نے انہیں رہنے کی جگہ دی، انہیں یعنی کہ اپنے پیچھے باوجداد میں سے تصور کیا. تو لیکن آج بہت غلط میرے خیال سے اسرائیلی کر رہے ہیں ان کے فلسطینیوں کے ساتھ. اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا یہی خیال ہے کہ جو ہمارے نیشن کے فادر ہیں قائد اعظم، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ فلسطین کو اس کا حق نہ. جی بیسیکلی تو دیکھا جائے کہ جو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. ان کے گھروں میں ماں بہن کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، جو بالکل صحیح نہیں ہے. تو ہمیں باحیثیت پاکستان ہونے کے تحت کہ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، ان پہ ظلم ڈھا رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے حمایتی ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے میڈیا کے ذریعے، کیونکہ موسٹلی فلسطینی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اتنا عقل و شعور بھی ابھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے ظلم کا جو دفاع ہے اس کو مقابلے پہ آ کے ظلم کے ساتھ کرنا چاہیے. میں اگر اپنا اوپینین دوں تو اس میں یہی کہوں گا کہ ایز اے مسلم کمیونٹی کے طور پہ ہمیں نہیں تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو حالات سارے پتہ ہیں جس طرح وہ قبضہ کر رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچایا ہے مسلموں کو، اس لیے ہمیں ان سے بات کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں قائد اعظم نے ایک کلیئر انڈیکیشن دیا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک طرح سے توہین کی. ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس جگہ سے نکل جائیں، لیکن جو پیلسٹائن کے لوگ ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہیں اور اپنی جگہ پہ وہ لڑ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں بالکل بھی سپورٹ کرنا چاہیے اسرائیل. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری مسلم کنٹری ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف بات کرنی چاہیے، ہمیں اس کے خلاف ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. تو وہ فلسطین میں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے ہمیں. دیکھیں، بحیثیت مسلمان پہلی بات ہے ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات قائد اعظم کی، تو وہ اس نیشن کے فاؤنڈر ہیں. اگر ہم ان کی بات نہ مان کر انہیں ایکسیپٹ کر لیں تو یہ ہمارے لیے کسی سے کم نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ قابض ہے فلسطین کی زمین پر،
फिर सवाल तो ये भी बनता है कि हिंदुस्तान भी तो फिर काबिज है कश्मीर की ज़मीन पर। सवाल तो फिर ये भी बनता है कि अफगानिस्तान के तालिबान भी काबिज है अफगानिस्तान की ज़मीन पर। फिर हिंदुस्तान के साथ हम क्यों चाहते हैं कि बरदराना ताल्लुकात हो, फिर हम क्यों चाहते हैं कि चाइनीज़ से हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, फिर हमें किसी को भी नहीं मानना चाहिए। अगर इख्तिलाफात है तो फिर सबके साथ होने चाहिए। फिर हमें अमेरिका को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सारी ईसाई है। फिर हमें यूरोपियन कंट्री से भी बिल्कुल किनारा कशी करनी चाहिए क्योंकि वो सारी ईसाई है। अगर मजहबी इख्तिलाफ है, अगर ज्यूइश लोग ये कहते हैं कि भाई ये इसराइल हमारी ज़मीन है, उनकी 5000 साल की तारीख है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो सब इसराइली थे, इसी ज़मीन से वो गए हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल-बकरा में बार बार बनी इसराइल का जिक्र किया है और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाकर की ज़मीन फतह कर ले, मगर इसराइली अपनी डर की वजह से उस ज़मीन पर काबिज ना हो सके। ये ज़मीन तो उनकी है, पाकिस्तान होता कौन है? पाकिस्तान को सिर्फ 100 साल हुए बने हुए, उनकी तारीख 5000 साल की है। पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि हमने उनको तस्लीम नहीं करना? फलस्तीन तो असल में इसराइल की ज़मीन पर काबिज हुआ था, मुसलमान बाद में आए थे, मुसलमान कमांडर्स जो थे उन्होंने ये ज़मीन फतह की थी। असल में ये ज़मीन तो इसराइलियों की है, वो 5000 साल बाद अपनी ज़मीन लेने आए हैं, वो चाहते हैं कि उनका थर्ड टेंपल बने, तो फिर हमें क्या मसला है उससे? और दूसरा ये कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे पाकिस्तान में मौजूद हैं इसराइली एजेंट जो कायद आज़म के फरमान के अगेंस्ट जाकर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी नाजायज़ रियासत को कबूल करे। ऐसे जो हैं अफराद उनके खिलाफ पाकिस्तान को क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि कायद आज़म ने एक रेड लाइन दी थी तो उसको अबूर हमें नहीं करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ करना चाहिए कार्रवाई। और जो आपने एजेंट की बात की, खैर ये एजेंट की बात, एजेंट जो से पाकिस्तान में फिर रहे हैं, मेरे नज़दीक हुकूमत का ये इस चीज़ को मुकम्मल बैन कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा उनसे कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसराइल को किसी सूरत हम तस्लीम नहीं कर सकते। उसको तस्लीम करने का मतलब है हम इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई तो ज़ाहिर है बनती है। ये मेरे नज़दीक सब कुछ होता है फंडिंग पे, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने मुल्क में दूसरे मुल्क में अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए उस मुल्क में गद्दार ढूंढता है, फंडिंग करवाता है उनको उकसाता है अपने मकासद के लिए। ज़ाहिर है जो गद्दार होते हैं, ट्रेटर्स हर मुल्क में होते हैं। पाकिस्तान में भी बेशक यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद ऐसी रियासत है जो इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर, एक पाकिस्तान वजूद में और इसराइल भी मज़हब के नज़रिए पर वजूद है, लेकिन मज़हब अलग अलग है। तो इस्लामी रियासत इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर सिर्फ पाकिस्तान वजूद में। हमें चाहिए कि हम इसराइल को एज अ रियासत तस्लीम ना करें, एज अ किंगडम तस्लीम ना करें, एज अ स्टेट तस्लीम ना करें, क्योंकि अगर हम इसको तस्लीम कर लेंगे तो ये समझें हमने फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म किया। नहीं, अगर आप थोड़ा सा डेमोक्रेसी को फॉलो करें तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीडियो पर्सनल भी हो सकते हैं उनके इस हवाले से। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को हक नहीं पहुंचता कि एक मुस्लिम कंट्री में रहकर वो एक इसराइली यहूदियों को कहें जी को आप इस तस्लीम करने की बात करें। जो कंडम करना चाहिए सबको, और हर लिहाज से हर सतह पे हमें कंडम करना चाहिए इस बात को। बिल्कुल देखें, ये तो जहालत की हद है कि वो इसराइली हैं, वो उन्होंने वो एक तो मुसलमान नहीं है, वो दूसरे वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, तो हम तो उनकी चीज़ें भी यहाँ सेल करवा रहे होते हैं, तो हमें यहाँ से बिल्कुल उनका बायकॉट करना चाहिए और बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। जब हमारे पासपोर्ट पे ही लिखा है कि हम इसराइल नहीं जा सकते, उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं काम कर सकते, तो फिर ये किस बेस पे ये पाकिस्तानी जो जाते हैं उनसे प्रोडक्ट सेल करते हैं या उनके साथ इजारादारी कायम करें, तो इनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में हूँ। देखिए, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मेरे ख्याल में हमें इनके खिलाफ या अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए कि ये लोग हैं। हमें ऑब्वियसली वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली तो शो नहीं अपने आप को शो करेंगे कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं कि जिसका कानून नहीं कहता कि हम इसराइल को नहीं सपोर्ट करते। तो मेरे ख्याल में इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सामने आए तो इनको कंडेम करना चाहिए हमें हर तरह से। कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम सब के साथ सिफारताना ताल्लुकात चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, चाहे हिंदुस्तान के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे इसराइल के साथ हो। अगर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, ट्रेड शुरू करें, क्योंकि इसराइल के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब इसराइली है। चाहे अमेरिकन में जितने कंपेयर करें अमेरिकन के साथ, इसराइलियों की तादाद ज्यादा है अमेरिका में। सब बड़े बिजनेसमैन वो है, टेक्नोलॉजी में इसराइल सबसे ज्यादा है, उनका डिफेंस सिस्टम कितना बेहतरीन है, उनके जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, आप जरा चेक कर ले इसराइल को, आप इसराइल के निजाम को पढ़े, वहां पर कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान से 1000 गुना इसराइल बेहतर है। हमें बिल्कुल इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और जितने भी एजेंट है उनको अपना काम रखना चाहिए। अक्सा में हर साल रमज़ान में बिलखसूस इसराइली जो हमला करते हैं और उनके बच्चों को टारगेट करते हैं और उनकी नस्ल कुशी करते हैं, क्या फ़लस्तीन को अपने दिफा का हक होना चाहिए? जी, फ़लस्तीन का बेशक होना चाहिए। अगर मस्जिद अक्सा में के नाम है, अगर कोई उन पर जुल्म व सितम करता है तो हमें चाहिए कि हम उन पे डट के मुकाबला करें। बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें बाकी तमाम ममालिक को, जैसे मुस्लिम ममालिक हैं या आलमी आवाज़ को भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि हर मज़हब में
अपने मज़हब की आज़ादी है, तो इसलिए मुसलमानों को भी पूरा हक है वहाँ पर जो हमें हमारा मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि वो जो ये तशद्दुद वगैरह औरतों के साथ करें मस्जिद अक़सा पर, इन्हें इनके खिलाफ उनके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए इससे। बिल्कुल देखें, पाकिस्तान का ये कानून है कि अगर आपके घर में कोई घुसकर आपको मारता है, ठीक है, तो आपके पास एक राइट है कि आप उसे गोली मार सकते हैं, ठीक है। तो वो फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा तो उनका एक समझिए घर है, और जब उसमें इसराइल घुसेंगे, उनको मारेंगे, उनके तौहीन करेंगे, तो उनका हक बनता है कि वो उसकी में जवाबी कार्रवाई करें। एज अ मुस्लिम तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एज अ मुस्लिम बात करें तो हमें घरों में नहीं बैठना चाहिए। पहली बात तो ये है, हमें घरों से निकल के इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ, ताकि किसी फाइट करनी चाहिए मेरे नज़दीक, हुकूमत मकतूल जितना हो सके। यानी कि अब हम तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम प्रोटेस्ट करके इनके अगेंस्ट इंटरनेशनल मीडिया को इन्फॉर्म करें, आगाह करें। क्या पाकिस्तान को सफारती महाज़ों के साथ साथ दिफाई महाज़ों पर भी फ़लस्तीन की इमदाद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ये करता है कि इसको करनी चाहिए। जी, कायद-ए-आज़म ने कहा था, तो इसके मुताबिक हमें हमारी हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को उनकी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर उनको जैसे खुराक मुहैया नहीं है और असलहा वो। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का सऊदी के साथ क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान अपने ट्रूप्स भेजता है वहाँ पे, अपने उनको ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान को ये भी करना चाहिए कि अपने फ़लस्तीन के साथ इस लिहाज़ तक जाना चाहिए कि अपने उनकी तरबियत, फ़ौजी तरबियत करनी चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 आर्मी में, पहले 10 आर्मी में नंबर 1 पे है, और इसी तरह पाकिस्तान को फ़लस्तीन की सपोर्ट के साथ-साथ उनकी दिफाई तौर पे भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। को हमें अपनी तरफ से इमदाद भी फ़राहम करनी चाहिए, जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए हमें अपनी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। करनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीन की मदद करता है, हर मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क की मदद करता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जिस तरह हालात हैं, जैसे इकॉनमी डाउन जा रही है और जैसे मुल्क की कंडीशन है, तो वो पाकिस्तान इस तरह से तो हेल्प मेरे ख्याल में नहीं कर सकता फ़लस्तीन की। सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाएं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए कदम होगा। हमें चाहिए उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, उनको हम इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें, उनको कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग करें। करनी चाहिए ऑब्वियसली, और हर तरह से मोरल सपोर्ट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से कोई आगाही मुहिम होनी चाहिए ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो? जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को पता चले किस तरह से वो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं और हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। गाइस ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके लिए तरबियत भी करनी चाहिए कि मुश्किल हालात में अगर कोई वक्त है तो हमें कैसे निपटना चाहिए उसको। जी, इसके बारे में प्रोग्राम होना चाहिए, बल्कि लोगों को बताना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है और हमें उनके उनके ताउन के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और इसके प्रोग्राम के लिए हमें इंतज़ाम करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए प्रोग्राम। मैं तो बल्कि अपनी एचओडी को भी कह रहा था कि मैडम ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, इससे आगाही है बच्चों में कि शोर आना चाहिए कि फ़लस्तीन के हवाले से। बिल्कुल जी, बिल्कुल देनी चाहिए। हर जामिया को चाहिए, हर यूनिवर्सिटी को चाहिए, तलबा और तालिबात को चाहिए, असातिज़ा को चाहिए, आपके स्टाफ को चाहिए कि इस तरह के ये क्रिएट करे, इस तरह की इवेंट्स करवाए अपने यहाँ पे, जहाँ पे फ़लस्तीनियों के बारे में, उन पर जो जुल्म हो रहा है उनके बारे में अवेयरनेस दी जाए और लोगों को ये बताया जाए कि फ़लस्तीनी मज़लूम है। ये बिल्कुल होने चाहिए, और इसके हवाले से क्योंकि हम एज ए मुस्लिम हमें सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। छोटे प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएंगे तो बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएगी, इसलिए हमारे एज मुस्लिम भाई भी हैं, तो जब तक हमें उनका दर्द होना चाहिए, हमें उनके दिल का एहसास होना चाहिए। इसलिए जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ प्रॉपर लेक्चर्स होने चाहिए कि बच्चे, आजकल के बच्चों को कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इनके प्रॉपर लेक्चर्स हों, उनको बताया जाए कि इस मुल्क में, इस कंट्री में ये कुछ हो रहा है, तो हमें इसके खिलाफ किस तरह आवाज़ उठानी है, हमें किस तरह एहतजाज करना है इस बारे में। जी बिल्कुल, ये तो लाज़मी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है और आप सुनी सुनाई बातों पर अमल करके उन पे कह रहे हैं, तो मेरा नहीं मानना कि इस तरह आपका कोई ईमान मजबूत होता है और आप उनके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए है प्लेटफॉर्म, और सबके लिए लाजिम है कि क्या नाम कहते हैं, इस इशू को जितना हो सके रेज करें, ताकि जो इस लोग इनसे इन्फॉर्म है वो इससे इन्फॉर्म होने के बाद इनके अगेंस्ट आएँ, ना कि इनके साथ आएँ। कई लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता भी नहीं है, वो कहते हैं जी इजराइल बिल्कुल ठीक जा रहा है, कहीं ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए हमें पहली बात है आगाही इसलिए बहुत ज़रूरी है, और ये इसी तरीके से होता है जब आप, मैं और सब मिलके, हम सब इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पर रेज करें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसका हम सही पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा, ये इससे हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। इसी तरह हम इसराइल की हुकूमत को काबिज होने से रोक भी सकते हैं। यूनिवर्सिटी में रहते हुए एज ए स्टूडेंट हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को डर भी होता है कि हम फंस ना जाएं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है पाकिस्तान में, लेकिन एक हद तक है, आप इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते। और लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट जो है, हमें प्रमोट करना चाहिए कि हमें इजराइल को हर तरह से बॉयकॉट करना चाहिए।